الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، معزز بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، بات بہت تھوڑی سی ہے اور بہت چھوٹی سی بھی ہے۔ آج سے تقریباً 2 سال پہلے اخبار میں ایک سرخی چلی تھی کہ ایک چوہے نے ایک بس کو گرا دیا، پلٹ دیا۔ اب بات ہنسی کی بھی ہے بظاہر کہ ایک چوہے نے ایک بس کو پلٹ دیا۔ اب جو شخص بھی اس خبر کو پڑھتا وہ حیران رہ جاتا کہ کہاں چوہا ہے اور کہاں بس ہے، بھلا ممکن ہی نہیں ہو سکتا، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن جب بات کو پوری پڑھتا، خبر پوری نیچے تک پڑھتا تو سمجھ میں آ جاتا، یقین آ جاتا کہ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ پوری خبر اس طریقے سے ہے کہ بس کا ڈرائیور کسی دیہات کا رہنے والا تھا اور رات میں بس کو ایک طرف کھڑا کر کے اپنے مکان پر پہنچا آرام کرنے کے لیے۔ اب وہاں کسی طریقے سے بس کے اندر چوہا داخل ہو گیا اور کسی کونے کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اب بس کا ڈرائیور جب صبح کو بس لے کر کے چلا تو چوہے نے فوراً ایک پوزیشن حاصل کی اور چوہا اپنی جگہ سے ہٹا اور ڈرائیور کی پینٹ کے اندر گھس گیا۔ اب بظاہر خلبلی ہوئی، اس نے ہاتھ پیر چلائے، اسٹیئرنگ سے ہاتھ ہٹا تو بس پلٹ گئی۔ اب اخبار والوں نے لکھ دیا ایک چوہے نے ایک بس کو پلٹ دیا۔ پلٹا جا سکتا ہے، لیکن اس مثال سے میرے دوستو بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ خالص مثال نہیں ہے بلکہ ایک سبق ہے۔ ایک ہوتا ہے مزاج، ایک ہوتا ہے حقیقی۔ مزاج کہتے ہیں نقلی کو، تصویر کو، اور حقیقی کہتے ہیں اصل کو۔ اب یہ جو ہمارے سامنے ایک دیوار نظر آ رہی ہے، اس دیوار پر ایک تصویر بنائی جائے مجاز، جو نقلی ہے، حقیقی نہیں ہے، اور تصویر کسی خونخوار جانور کی بناؤ، مثلا شیر ہے، سانپ ہے، اژدہے ہیں، اس کی تصویر بناؤ اور پھر ایمانداری سے بتائیے کیا اس سے کوئی ڈرے گا، کوئی گھبرائے گا، کوئی تھرائے گا، کوئی کانپے گا؟ ممکن ہی نہیں، کیونکہ وہ مزاج ہے، نقلی ہے۔ لیکن اس مجلس میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، شیر کی تو بات ہی نہ کیجئے، اژدہوں کی تو بات ہی نہ کیجئے، معمولی سی ایک چھپکلی آ کر کے گر جائے، اس سے ہم ڈر جائیں گے، اس سے ہم گھبرا جائیں گے۔ معمولی سا ایک مینڈک آ کر کے اچھل کود کرے، ہم سب یہاں سے الگ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اس کو راستہ دینے کے لیے، کہیں نقصان نہ پہنچ جائے۔ معمولی سے ایک کتا آ جائے، اس سے ہم بھاگتے اور دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو بات سمجھ میں آتی ہے میرے عزیزوں، تصویر سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔
तस्वीर से कुछ होने वाला नहीं है, अगरचे वो बहुत बड़ी हो, और हकीकत अगरचे छोटी हो उससे बहुत कुछ हो जाता है, जैसे इन दो मिसालों से सामने आया। तो इसलिए हमें चाहिए हकीकत को पैदा करें, हकीकत को पैदा करें। और हकीकत कैसी हकीकत? हकीकत नमाज को पैदा करें, हकीकत तिलावत को पैदा करें, हकीकत जिक्र को पैदा करें। आज हमारी जो नमाजें हैं मेरे अजीजों, सूरत नमाज है। नमाज हकीकत नमाज नहीं है, नमाज सूरत नमाज हमने बनाई है। मिसाल लीजिए, सूरत नमाज यानी नमाज का एक तरीका है जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ी, हजरत सहाबाए किराम ने उसको नकल किया कि इस तरीके से क़याम किया, इस तरह रुकू किया, इस तरह सजदा किया, इस तरह तशहुद किया। ये एक सूरत नमाज है, हकीकत नमाज नहीं है। हकीकत नमाज क्या है? कुरान कहता है कि अगर हकीकत नमाज होती तो बेहयाई से रोक देती, हकीकत नमाज होती तो बुरी बातों से, बुरे कामों से रोक देती। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। अगर हकीकत नमाज होती तो हमें बुराई से रोक देती, अगर हम नहीं रुकते, इसका मतलब ये हकीकत नमाज हम नहीं पढ़ते, ये नमाज का तरीका है, सूरत नमाज है। तो हमें क्या करना चाहिए? शेर की तस्वीर इतनी बड़ी तस्वीर, उससे कोई नहीं डर रहा, लेकिन बज़ाहिर एक छिपकली से अंदर जाते हैं तो मालूम हुआ तस्वीर से, मुजाज से कुछ होने वाला नहीं। हमें हकीकत को पैदा करना पड़ेगा। हकीकत अगरचे छोटी हो वो बहुत कुछ कर जाती है, और मुजाज अगरचे बज़ाहिर बहुत बड़ी तस्वीर हो उससे कुछ होने वाला नहीं, उससे कुछ होने वाला नहीं। मेरे दोस्तों, इसी तरीके से तिलावत को पैदा करें तो हकीकत तिलावत हो, सूरत तिलावत ना हो। हकीकत तिलावत क्या चीज है? कुरान करीम को जब हम खोलते हैं उसके उलूम व मारिफ हमारे सामने हो, हम समझे कि रब का कलाम है, रब हमसे बात कर रहा है। महज इस नियत से नहीं कि हम कुरान पढ़ रहे हैं, सामने वाले ने देख लिया, हमें सवाब मिल गया, बात खत्म हो गई, बल्कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को समझ कर पढ़े, तरतील से पढ़े, ये हकीकत तिलावत है। हकीकत जिक्र पैदा करे, सूरत जिक्र से बाहर निकले। हकीकत जिक्र जब इंसान करता है वो ये समझ कर, सोच कर करता है कि अल्लाह की मोहब्बत में मैं डूब चुका हूं, मेरे दिल से जुल्मत, सियाही, गुनाह खत्म हो रहे हैं, मेरे दिल में अल्लाह की रहमत, उसका नूर समाया जा रहा है। ये हकीकत जिक्र है। हमने सूरत जिक्र अपनाया, महज अल्लाह अल्लाह करते चले गए। मेरे दोस्तों, सूरत नमाज से कुछ होने वाला नहीं, सूरत जिक्र से कुछ होने वाला नहीं, सूरत तिलावत से भी कुछ होने वाला नहीं। हमें हकीकत नमाज, हकीकत जिक्र, हकीकत तिलावत को पैदा करना पड़ेगा। अगर ये हो गया तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। आपने देखा होगा कि मुसलमानों की तादाद इस वक्त में बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी दुनिया से डर रहे हैं, फिर भी दुनिया इन्हें भगा रही है, डरा रही है। इसका मतलब ये है तादाद तो बहुत ज्यादा है, लेकिन चूंकि हकीकत ईमान नहीं है, ईमान की हकीकत दिल में नहीं है, ईमान कमजोर हो चुका है, अकीदा कमजोर हो चुका है, आज दुनिया हमें डरा रही है, दुनिया से हम थर्रा रहे हैं, कांप रहे हैं। अगर हमारे अंदर सूरत निकलकर हकीकत आ जाए फिर दुनिया हमसे कांपेगी, फिर दुनिया हमसे घबराएगी, फिर दुनिया हमसे ठर्राएगी, फिर दुनिया हमसे डरेगी। इसलिए हकीकत को पैदा करे, अगरचे वो थोड़ा हो, जाहिर से कुछ होने वाला नहीं है। मिसाल लीजिए कि हमने एक अच्छा सा खूबसूरत सा लिबास बनाया, उसे जेब तन किया, बजाहिर हम अच्छे लगने लगे, अच्छी सी एक तस्वीर ले ली, अब हमने अपनी तस्वीर लेकर देख रही है बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन क्या इससे कुछ हो सकता है? इससे कुछ नहीं होगा।
अगर हकीकत अंदर आ गई, ईमान की हकीकत और चाशनी हमारे सीने में मुंतकिल हो गई, तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि हजरत सैयदना हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो वाक़या याद करो कि आपके कपड़ों में पेवंद लगे हुए हैं लेकिन दुनिया डर रही है। आप सवारी की नकेल को अपने हाथ में पकड़ करके चल रहे हैं लेकिन दुनिया डर रही है। आपका गुलाम सवारी पर सवार है लेकिन दुनिया डर रही है, दुनिया कांप रही है, दुनिया थर्रा रही है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हकीकत थी, क्योंकि उन्होंने हकीकत पर अपनी जिंदगी को बनाया था, उन्होंने अपने अंदर हकीकत को मुंतकिल किया था। बावजूद इसके कपड़ों पर पेवंद है, दुनिया डर रही थी। बावजूद इसके के गुलाम सवारी पर सवार और खुद नकेल पकड़कर चल रहे हैं लेकिन दुनिया फिर भी कांप रही थी, क्योंकि उनके अंदर हकीकत ईमान मौजूद था जो आज हमारे अंदर नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, हकीकत को पैदा करने की जरूरत है। और एक मिसाल पेश करूं कि आजकल हम अपने बच्चों के हाथों में देख रहे हैं, गली मोहल्ले में नकली नोट लेकर के पूरी पूरी गड्डियां चल रहे हैं। ये 1 लाख की गड्डी है, ये 2 लाख की गड्डी है, ये 3 लाख की गड्डी है बच्चों के हाथ में। ईमानदारी से बताएं, क्या वालिदैन को वो नोट देखकर खुशी होती है कि मेरा बेटा करोड़पति बन गया? ये बहुत कुछ काम आएगा? बिल्कुल जर्रा बराबर खुशी नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि मुजाज है, क्योंकि जानता है कि तस्वीर है, क्योंकि वो वालिद जानता है कि नकली नोट है, इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर उसी बेटे के हाथ में असली नोट आ जाए और 1 लाख नहीं बल्कि 50, 100, 500 ही आ जाए, वो बेटा भी खुश, बाप भी खुश कि एक मौका आएगा, किसी ना किसी काम में खर्च हो ही जाएंगे। ये काम आने वाली चीज है, इसको संभाल कर रखेगा। तो मेरे दोस्तों, हमने भी अपनी हालत कुछ ऐसी बनाई है। हमने नाम तो सहाबा वाले रखे, हमने काम तो शैतान वाले कर रहे हैं। हमने अपने आप को मुसलमानों की फहरिस्त में शामिल रखा, लेकिन क्या ये भी सोचा कि हम रब की फहरिस्त में कौन सी फहरिस्त में शामिल हो रहे हैं? हमारे काम कौन से हैं? खालिस हकीकत नाम रखने से कोई इंसान हकीकी नहीं बन जाता। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए मेरे दोस्तों बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। मेरे नौजवानों, हम फिरोडी बहुत बन चुके, हम मुजाजी बहुत बन चुके, हम धोखा देने वाले, तस्वीर वाले बहुत बन चुके। आज अपने रब से सुलह करने का वक्त है। आज अपने रब से सुलह कर लीजिए मेरे दोस्तों, अपने रब के सामने तौबा करने का वक्त है, अपने दिल को बदलने का इरादा करने का वक्त है। आज हमें इरादा करना पड़ेगा कि प्यारे अल्लाह, हमने बहुत से लोगों को सताया, बहुत से लोगों का दिल दुखाया। प्यारे रब, हमने अपनी जबान से बहुत से लोगों को तकलीफ दी, बहुत से लोगों को झूठ बोल करके बहकाया, बहुत से लोगों को धोखा दिया, बहुत से लोगों की गीबतें चुगलियां की, बहुत से लोगों पर इल्जाम लगाया, बहुतान बांधा, उनकी पीठ पीछे उनकी बुराई करके अपने आप को गुनाह में शामिल किया। प्यारे अल्लाह, आज हम अपने आप को बदलना चाहते हैं। अल्लाह, हम अपने दिल को बदलना चाहते हैं। प्यारे रब, हमें बदल दीजिए। अल्लाह, हम आपका बनना चाहते हैं। प्यारे रब, हम आपका बनकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं। रब्बे करीम, आप हमारी जिंदगियों को बदल दीजिए। प्यारे रब, हमारी जिंदगियों को बदल दीजिए। रब्बे करीम, हमें अपना बंदा बना लीजिए, हमें बंदगी वाला बना लीजिए, सही मानों में बंदगी करने वाला बना लीजिए। अल्लाह जी, हम आज से आपके बंदा बनकर ये जिंदगी गुजारना चाहते हैं। दुनिया ने बहुत धोखा दे दिया, दुनिया को हमने बहुत कमा लिया। रब्बे करीम, आज हम तमाम के तमाम बुराइयों से तौबा कर आपके होना चाहते हैं। रब्बे करीम से जब इस तरह से मांगेंगे, इस तरह से इरादा करेंगे, रब्बे करीम तो वो करीम रब है, गफूर रहीम है, रहमान है, करीम है। वो अल्लाह तो इतना बड़ा रहीम है, फरमाता है कि अगर मेरे बंदो तुम आए गुनाह इतने हो जाए कि जमीन की तह से लेकर आसमान की बुलंदियों तक छू जाए और फिर नदामत का एक आंसू बहाकर मुझे अल्लाह पुकार लेना, मुझसे माफी मांग लेना, मैं तुम्हारा रब तुम्हें माफ कर देगा। रब्बे करीम तो वो रब है जो
जो कुरान में साफ ऐलान कर चुका, ए मेरे बंदो, अपने गुनाहों से तुम मायूस मत होना, अपने गुनाहों पर तुम शर्मिंदा होकर मेरे पास आए हो तो तुम्हारा रब तुम्हारी शर्मिंदगी को दूर कर देगा। मेरी रहमत से ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम मायूस ना होना, तुम मायूस ना होना। रब्बे करीम से मांगकर तो देखो, हकीकी बनकर तो देखो, फिर कितना मजा आता है तब पता चलेगा। कितना मजा आता है रब का बनने में, बहुत ज्यादा मजा आता है। इज्जतें मिलती हैं, शोहरतें मिल जाती हैं, और इसके अलावा रब हमारा हो जाए तो इससे बड़ी तो कोई नेमत हमारे लिए हो नहीं सकती। लेकिन शर्त है, मुजाज को खत्म करना पड़ेगा, तस्वीर को खत्म करना पड़ेगा, हकीकत में अल्लाह का बनना पड़ेगा, हकीकी बंदा बनना पड़ेगा। नौजवान, वो नौजवान जो मोबाइल के हाथों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर चुके, वो नौजवान जो अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर चुके, कभी माल की नेमत उन्हें अल्लाह ने दी, लेकिन उस माल को कभी मोबाइलों के नाम पर, कभी मकानात के नाम पर, कभी गाड़ियों और बंगलों के नाम पर, कभी दोस्तों की पार्टियों के नाम पर, कभी अय्याशी और अय्याशी के नाम पर वो अपने इस जवानी को, वो अपने इस कीमती माल और सरमाए को बर्बाद कर चुके। काश के वो अपने रब से सुलह कर ले, काश के वो अपने रब से माफी मांग ले, काश के वो अपने रब से सुलह करके वो रब के दामन में आकर पड़ जाए, काश के वो अपने रब को समझ ले और उससे राबता कायम कर ले। और फिर देखना अल्लाह की नेमतें, कैसी नेमतें तुम्हें हासिल होती हैं जिसका तुमने और मैंने अंदाजा भी न लगाया हो। अल्लाह तुम्हें और मुझे उन नेमतों से नवाज देगा, लेकिन इसके लिए रब से राबता करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, ऐसे ही नहीं चलता। और रब से राबता करना पड़ेगा। वो नौजवान जिन्होंने अपने दिलों को बर्बाद किया, अपनी जवानी को बर्बाद किया, ओ नौजवान, आओ अपने रब से माफी मांगो, आओ अपने रब से राबता करके कहो, प्यारे अल्लाह मैं आपका बनकर जिंदगी गुजारना चाहता हूं, मुझे अपना बना लीजिए। क्या वो रब तुम्हें अपना नहीं बनाएगा? जरूर बनाएगा, क्योंकि वो रब तो तुम्हारे इंतजार में बैठा है। फरमा रहा है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद तो करो, मैं तुम्हें भी याद करूंगा। तुम मेरी तरफ आओ तो सही, मैं तुम्हारी तरफ भी आऊंगा। और तो पुकार कर कह रहा है। आज नौजवान कभी व्हाट्सएप पर, कभी इंस्टाग्राम पर, कभी फेसबुक पर, और ना जाने कहां कहां अपनी जिंदगियों को मैला और कुचैला कर रहे हैं, अपनी आंखों को गंदा कर रहे हैं, अपनी जवानी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, अपने दिल को बेकार कर चुके हैं, और वो उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई हसीना और जमीला को ले बैठे हैं, और वो समझते हैं कि हमारी जिंदगी में सुकून देने की एक अल्लाह की तरफ से नेमत है। मेरे दोस्तों, ये नेमत नहीं, मेरे दोस्तों ये सुकून नहीं, तुम्हारी जिंदगी को बिगाड़ने का एक जरिया है, तुम्हारी जवानी को बर्बाद करने का एक जरिया है, तुम्हारे दिलों को उजाड़ने का एक जरिया है, तुम्हारी हया को खत्म करने का एक जरिया है, तुम्हारी आंखों की शर्म को खत्म करने का एक जरिया है। ये नौजवान, और बहुत से नौजवान तो वो हैं जो ईमान वाले नहीं, गैर ईमान वालियों के पीछे पड़े हुए हैं और उन्हें अपना मोहसिन समझ रहे हैं। क्या उन्हें ईमान और गैर ईमान में भी, साहिब ईमान में भी फर्क नहीं आया? फर्क तो नजर आ जाना चाहिए था। मेरे अजीज नौजवानों, अपनी जिंदगी को बदलो, हालात को बदलो और एक करवट लो। आज हम किसी की बहन को तकते हैं, किसी की बेटी को तकते हैं, किसी की बीवी को तकते हैं, किसी के साथ काला मुंह करते हैं, और फिर यूं समझते हैं कि हमें देखने वाला कोई नहीं, जबकि अल्लाह ने कहा वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां भी कहीं जाओ अल्लाह तुम्हारे साथ है। हम समझते हैं हमें देखने वाला कोई नहीं। चोरियां सीनों की हैं, चोरियां सीनों की हैं और आंखों का है राज। चोरियां सीनों की हैं और आंखों का है राज, और सब कुछ जानता है वो बेनियाज। वो अल्लाह है, वो सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ जानता है, वो सब से बाखबर है, वो किसी से बेखबर नहीं है। जो तू करता है दुनिया में छुपकर,
जो तू करता है दुनिया में छुपकर, आसमान से तुझे कोई देख रहा है। आसमान से देखने वाला रब है। हम यूं समझ रहे हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा। अल्लाह की कसम, अल्लाह वो जात है जिसने तुम्हें खुद बज़ाहिर नहीं हकीकतन बनाया और बना करके तुम्हारे ऊपर नजर रखी। और नजर कैसी रखी? इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। जिस तरीके से शिकारी अपने शिकार पर नजर रखता है, वो पलखे नहीं मारता, इसी तरीके से अल्लाह को ऊँग नहीं आती, वो तुम पर नजर जमाए बैठा है। पढ़िए आयतल कुर्सी, उसमें क्या लिखा है? अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। उसे ऊँग नहीं आती, उसे नींद नहीं आती, और अब तुम्हारे ऊपर नजर जमाए बैठा है और तू समझ रहा है कि मुझे कोई देखने वाला नहीं। मेरे नौजवानों, अपनी जिंदगियों को बदलो, अपनी जिंदगियों को बर्बाद होने से बचाइए। अल्लाह ने इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत जवानी दी है, इसे कहां बर्बाद करने पर तुले हो? आओ रब के बनकर तो देखो, रब का होकर तो देखो। आज हमने 35-35, 40-40 साल गुनाहों में गुजार दिए, अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दिए। आओ अल्लाह का बनकर देखो, फिर देखना मजा कितना आता है। हमने 35-35, 40-40 साल अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियों में गुजारे, और गुजारने के बाद हमें इसका कोई एहसास नहीं होता। हमने अपने आंखों को गंदा कर लिया, अपने दिल को तबाह कर लिया, अपनी जवानी को बर्बाद कर लिया, अपने सुकून को खत्म कर लिया, और हम समझ रहे बस सब कुछ वही है। आए हमने अपने माँ बाप को उलझनों में घेर दिया, हमने अपने माँ बाप को रुला दिया, वो हमारी शक्ल देख देख कर बीमार पड़ चुके हैं। अब बेटा बिगड़ गया, अब बेटी बिगड़ गई, और उन्हें हमने खून के आंसू रुलाने पर मजबूर कर दिया, और हम समझ रहे हैं कि हमारा ये बिगाड़ क्या लेंगे। नौजवानों, अपने माँ बाप को खून के आंसू रुलाने वालों, जरा तुमसे भी मुखातब होकर कहता हूं, यूं ना समझना इनके बाजुओं में ताकत नहीं रही, इनके हाथ पैर हमारी तरफ उठकर नहीं चल सकते। रब्बे करीम वो रब है कि इनका रब के अंदर पहले भी कुदरत थी, आज भी कुदरत है, पहले भी ताकत थी, आज भी ताकत है। तुम्हारे वालिदैन कमजोर हुए हैं, वो भी तुम्हारी ही वजह से हुए हैं, तुम्हारी ही गुनाहों की नहुसत से हुए हैं। वो ये सोच सोच कर अपनी जिंदगी को तबाह कर चुके। अब बेटा बिगड़ गया, अब बेटी बिगड़ गई, जाए तो किधर जाए? इज्जत का जनाजा घर से उठाने वालों, जरा सुनो, अगर इनकी जबान खुल जाए, अल्लाह से शिकवे और शिकायतें करने लगे, अल्लाह की जात बूढ़ी नहीं हुई, तुम्हारे वालिदैन बूढ़े हुए हैं, अल्लाह की जात कमजोर नहीं हुई, तुम्हारे वालिदैन कमजोर हुए हैं। इनकी जबान से निकलने वाला जुमला अल्लाह के अर्श को हिला करके रख देता है। किसे खून के आंसू रुला रहे हो, और फिर फरेफ्ता किस पर हो रहे हो? उस हसीन और जमील पर, उस खूबसूरती पर जो एक दिन फना होने वाली है, जो एक दिन खत्म होने वाली है। जो खूबसूरती खत्म, उसका नशीब फराज खत्म, उसकी जिस्मानी ताकतें खत्म, उस पर तुम वादे कर रहे हो कि तेरे लिए चांद से सितारे तोड़कर लाओ, आसमान से चांद उतार लाओ, ऐसे ऐसे बेहुदा वादे कर रहे हो। नौजवानों, हंसने की बात नहीं है, खुदा की कसम ये दर्द दिल बता रहा हो। आज के माँ बाप से जाकर पूछो, कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें नौजवान तबके की ये हालत ना हो चुकी हो। ये हंसने की बात नहीं है। अरे तुम उस खूबसूरती पर मर रहे हो, जिसको तुम हसीन और जमील समझ रहे हो, वो एक दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन जरा ये तो सोचो, उसको बनाने वाला अल्लाह कितना खूबसूरत होगा, जब उसकी मखलूक कितनी खूबसूरत है। उसको भी तो अल्लाह ने बनाया इतनी खूबसूरत, जब उसके बनाने वाला ऐसे बनने वाला, जिसको बनाया वो ऐसा है, तो उसको बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। उस पर जिंदगी लुटाओ, और वो ऐसा रब है जो कभी खत्म होने वाला नहीं, एक दिन तुम्हें धोखा दे करके रुखसत हो जाएगी। इसी को किसी शायर ने कहा है, किसी खाकी पर मत कर खाक, अपनी जिंदगानी को जवानी कर फिदा उस पर जिसने दी जवानी को। मेरे दोस्तों, जवानी अल्लाह की दी हुई एक अजीब नेमत है, ये बड़ी नेमत है।
इसकी कदर कर लो, अपने रब से सुलह कर लो, वरना एक वक्त आएगा और तुमसे सवाल होगा, बताओ इस जवानी को कहां गुजार करके आए, किन कामों में गुजार करके आए। आज हम अपने जवानी की अकड़ में और जमीन पर इतने अकड़ कर चलते हैं, जबकि कुरान कहता है कि तुम इसे फाड़ नहीं सकते, फिर अकड़ने की जरूरत क्या है। इतना बुलंद होकर के चलते हैं जवानी के नशे में, और फिर अल्लाह कुरान में कह रहा है कि तुम आसमानों की बुलंदियों को नहीं पहुंच सकते, तो फिर अकड़ने की जरूरत क्या है। मेरे दोस्त, वालिदैन को सताना बंद करो, उस रब से सुलह करो जिस रब ने तुम्हें पैदा किया, जिस रब ने तुम्हें बनाया, और ये लैला मजनू वाले किस्सों को खत्म करो और अल्लाह के होकर के बन करके दिखा दो कि अल्लाह तूने हमें जिस मकसद के लिए पैदा किया उस मकसद के लिए हमें कबूल फरमा ले, उस मकसद के लिए कबूल फरमा ले। और मेरे दोस्तों, इस तरह के बहुत से वाकयात मेरे जहन में आ रहे हैं, और खुद इस आजिज के पास इल्ला माशाअल्लाह हफ्ते में 1-2 दिन ऐसा जाता होगा जिसमें फोन ना आता हो, लेकिन कभी बजाते खुद मेरे सामने आकर के नौजवान कहता है, कभी फोन के जरिए कहता है, मौलाना मैंने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया इस अय्याशी में पढ़कर, आज वो मुझे छोड़ करके जा चुकी है, मैं क्या करूं, माँ बाप ने घर से बाहर निकाल दिया, मौलाना अब मैं क्या करूं। ये हर घर की कहानी हो चुकी है, हर घर का किस्सा बन चुका है। हम समझते हैं कि हमारे वालिदैन 40-50 साल की उम्र में हाथ पांव से कमजोर होकर चारपाई पर बैठ गए, अब इनके कमाना बस की नहीं रहा। लेकिन नौजवानों का भी ये भी तो सोचो, इन्हें कमजोर करा किसने है। ये खुद कमजोर नहीं हुए, इन्हें कमजोर किया गया है, और वो कमजोर करने की वबा तुम्हारे सामने बताई कि ये जो किस्से और कहानियां चल रही हैं, इनसे सबसे ज्यादा वालिदैन चाहते हैं कि हमारी इज्जतें महफूज रहें। अपनी औलाद को समझाओ, और उनके जो ये मोबाइल का सिस्टम है ना, खुदा की कसम इसके ऊपर अगर बयान किया जाए तो दिन रात कम पड़ जाए। इसने इतने फितनों को उभारा है, इतनी तबाहियां इसने लेकर के आया है जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई हद नहीं। इससे अपने बच्चों को बचा लो, इसके गलत इस्तेमाल से बचा लो, तुम भी खुश रहोगे, तुम्हारी औलादें भी खुश रहेंगी। और जब तुम अल्लाह के बनकर के जिंदगी गुजारोगे, और मैं ज्यादा बातें ना कहते हुए सिर्फ एक छोटी सी बात कहता हूं, तुम्हें मेरी बात बड़ी लग रही होंगी कि हमें अब एकदम से जिंदगी कैसे बदले। तो सिर्फ 8 दिन के लिए, सिर्फ जुमे से जुमे तक के लिए गुनाहों से खाली जिंदगी गुजार करके देखो, सिर्फ 8 दिन, और फिर देखना कितनी इज्जतें मिलती हैं, फिर देखना कैसी नेमतें आती हैं, फिर देखना जिंदगी का सुकून कैसा मैसर होता है, फिर देखना जिंदगी में कैसी राहतें आती हैं, इसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। सिर्फ 8 दिन, और रमजान आने वाला है, रजब चल रहा है। ये ना सोचना कि अब रमजान आने लगा है चलो रमजान से तौबा करेंगे, चलो रमजान से नियत करेंगे। ना ना मेरे भाइयों, आज ही और आज भी अभी से अपने रब को बनाओ, अपने रब से सुलह करो। रब्बे करीम, हमें आपने पैदा किया, हम आप ही के बनकर के जिंदगी गुजारना चाहते हैं, इसके लिए कबूल फरमा दे। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत